BJP-led Mahayuti alliance has secured a thumping victory in 2024 Maharashtra Assembly elections, defeating the Congress-led Mahavikas Aghadi. The focus now shifts on who will be the next Chief Minister of Maharashtra. Outgoing Chief Minister Eknath Shinde, Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis and Ajit Pawar are the front-runners for the top post. However, there is a speculation about whether Fadnavis will return as Chief Minister or if Shinde will continue in that role. Union Home Minister Amit Shah has already indicated that the decision will be made through consultations. कि वहां पर जब जय भवानी कहते हैं तो जय शिवाजी का बुलंद नारा लगता है। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। आज हम यहां पर एक और ऐतिहासिक महाविजय का उत्सव मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आज महाराष्ट्र में विकासवाद की जीत हुई है। महाराष्ट्र में सुशासन की जीत हुई है। महाराष्ट्र में सच्चे सामाजिक न्याय की विजय हुई है। और साथियों, आज महाराष्ट्र में झूठ, छल, फरेब बुरी तरह हारा है। Union Home Minister Amit Shah has already indicated about the decision pending with consultations with alliance leaders. Speaking to reporters, Fadnavis meanwhile stressed that consensus had been reached, ensuring no disputes over the leadership. Now, Eknath Shinde's extensive campaign efforts and welfare schemes under his leadership have garnered goodwill for the alliance. His Shiv Sena faction has surpassed the 2019 tally, strengthening his case for a second term. मुख्यमंत्री की शपथ, ये कार्यक्रम अभी मुझे कोई ठोस कार्यक्रम मालूम नहीं है, क्योंकि इस बारे में तीनों पार्टी उसको बैठ के बात करना होगा। मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन का जो नई असेंबली के फॉर्मेशन का जो नोटिफिकेशन होगा कि ये एमएलए चुनकर आए हैं, उसके बाद उसका जो नोटिफिकेशन निकलेगा, उसके बाद ही ये प्रक्रिया जो सरकार बनाने की है वो शुरू होगी। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मुझे लगता है कि राजनाथ सिंह जी, जेपी नड्डा जी और कोई लोग आ रहे हैं, ऐसा हमको मालूम हुआ है। तो शायद वो ये तीनों नेताओं के साथ बातचीत करेगी और सहमति से निर्णय लेना है। जिस तरह पहले बीजेपी के पास 105 और इंडिपेंडेंट 11-12 थे, तो इतनी सीटें बीजेपी के पास थी, लेकिन 50 सीट लेकर एकनाथ शिंदे अपने साथ आई थी और उनके कारण सरकार बन गई थी। इसीलिए उनको मुख्यमंत्री पद देने का निर्णय बीजेपी के हाईकमांड ने भी लिया, देवेंद्र फडणवीस जी ने भी लिया और वो 4 कदम वो पीछे आए थे। तो अभी बीजेपी की इतनी सीटें आई है, तो बीजेपी के लोगों की तो मांग है कि भाई देवेंद्र फडणवीस जी बनना चाहिए, लेकिन ये तीनों नेताओं ने बताया कि भाई हम कुछ मतलब आम सहमति से निर्णय लेंगे। अभी तो क्लियर मेजोरिटी मिली है, विक्ट्री अपने को अपने तो अच्छी विक्ट्री अपनी बन गई है। एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस जी को, अजीत दादा को शुभेच्छा देनी चाहिए कि आपने बहुत कमाल कर दिया है, लेकिन ये बोलते हैं इसने कुछ गड़बड़िया है, ये कुछ ऐसा हो नहीं सकता है, ऐसा हो नहीं सकता है, ऐसा हो नहीं सकता है। लोगों ने वोट दिया है, इसीलिए मुख्यमंत्री पद का चेहरा जो है ये तीनों में से एक मुख्यमंत्री होंगे और 2 डिप्टी सीएम होंगे।
However, sources also suggest Fadnavis could be elevated to a national role as the next BJP president, paving the way for Shinde to remain chief minister for now. On the other hand, Ajit Pawar's NCP faction, which has 40 seats, would also influence the final decision. The BJP, despite its record performance, is short of the 145-seat majority mark and depends on allies like Shinde Sena and NCP. The question remains, will Shinde retain the post or will the BJP spring a surprise like it did in Madhya Pradesh last year? Remember that in December 2019, BJP leader Devendra Fadnavis had resigned as Maharashtra Chief Minister after just 4 days in power due to a shifting of alliances. Facing his former ally Uddhav Thackeray, Fadnavis quoted a famous couplet and promised a comeback. 5 years later, he made a good on his promise. Fadnavis, the 54-year-old leader with deep roots in RSS, Fadnavis is also credited with pushing the previous Congress NCP government into a corner over the alleged irrigation scam. For now, all eyes are on the alliance's leadership meeting, which will determine Maharashtra's next chief minister. महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति गठबंधन को मिली ऐतिहासिक विजय की सबको हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। यह जीत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की नीतियों की जीत है। महाराष्ट्र की जनता ने मोदी जी के मार्गदर्शन में समृद्धि एवं सुशासन पर आशीर्वाद दिया है। महाराष्ट्र की ऐतिहासिक विजय के लिए भाजपा के सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को पूरे हरियाणा की ओर से बहुत बहुत बधाई, साथ ही महाराष्ट्र की जनता जनार्दन का हार्दिक अभिनंदन मैं देता हूं, क्योंकि इस ऐतिहासिक जीत में महाराष्ट्र की लोगों ने जो निर्णय दिया है, ऐतिहासिक निर्णय दिया है, नरेंद्र मोदी जी के साथ उन्होंने कंधे से कंधा मिला करके जो विकास को आगे बढ़ाने का निर्णय किया है, इसके लिए सभी महाराष्ट्र के लोगों का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं। कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को संबोधित करते हुए, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए साफ कहा है कि एक हैं तो सेफ हैं। यही देश का नारा है, क्योंकि जब एक हैं तो सेफ हैं कहते हैं तो इसमें जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, लिंग के नाम पर जितना भी बंटवारा है, उस बंटवारे को खत्म करके हम सबको एक होना है। ये बात प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय एकता दिवस पर भी कही थी। और एक है तो सेफ है का नारा, ये ऐसा नारा बना जो पूरे देश के अंदर एक संदेश गया कि हम सबको एक रहना है। और इसमें हमारी जीत में ये नारे ने बड़ा रोल अदा किया है। जिस तरह कांग्रेस पार्टी बंटवारा चाहती है समाज में, उसको करारा जवाब महाराष्ट्र की जनता ने दे दिया है।